Hi friends, in today's session we'll start with ionic or electrovalent bond. Last session में हमने octet rule complete किया था and after that octet rule we'll start with the second topic of our syllabus, that is ionic bond. Name itself suggests ionic. So basically there are two types of ion. One is cation, another is anion. So this following of cation and anion and we get the ionic structure. किस हिसाब से? A bond formed by transfer of electron between two atoms is called ionic or electrovalent bond. दोस्तों in this session and previous session सभी के अंदर जो वन मार्कर क्वेश्चंस छुपे हुए हैं एज वेल एज डेफिनेशंस है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा. बहुत बार वन मार्कर क्वेश्चन ही ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं. So a bond formed by transfer of electron between two atoms is called ionic or electrovalent, or it is the force of attraction between two oppositely charged ions, as for example formation of NaCl. कैसे? So मैंने previous session में भी बताया था, यहाँ पे भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. NaCl is best example of ionic. Why? Because here in case sodium is nothing but 281. So group number 1 family always having one electron in outermost shell, so they are always ready to release this one electron. While in case of group 17, that is chlorine 287. So to complete its octet, सोडियम को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना पड़ेगा. While in case अगर क्लोरीन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. So here in case by losing one electron, here in case by gaining one electron, losing and gaining means basically it's a transfer of one electron, we get Na++ Cl-. The species who releases one electron they convert into cation, देखिए Na+. The species who gain one electron minus, that is called as Cl-. So here in case Na++ Cl-, that is ionic or electrovalent bond. In sodium atom there is only one electron in valence shell. In case of chlorine there are 7 electron in valence shell. यहाँ पे एक मिस्टेक है, that is 287 means 7 electrons are in valence shell. In order to attain octet, sodium loses one electron and convert into Na+, and chlorine gain one electron and convert into Cl-. So by losing one electron सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज. By gaining one electron क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज. These two ions attract each other by means of electrostatic force is called ionic bond. Once again, due to this, two ions attracted each other by electrostatic force is known as ionic bond. फिर से एक बार देख लीजिए, सोडियम के अंदर कौन सा था? 281. एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम प्लस पे क्या हो जाता है? 28 मीन सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लोरीन इज 287. by gaining one electron they achieve 288. So Na++ Cl- gives NaCl. So here in case this becomes your complete your octet. सोडियम को भी उसका ऑक्टेट मिल गया, क्लोरीन को भी उसका ऑक्टेट मिल गया, and due to this stable component NaCl is formed. अगर और भी क्लियर करना तो पिक्चरल डायग्राम देखिए. सोडियम इज ऑल अबाउट 281, तो देखिए 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा बाहर. सो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है. सो यहां पे क्या होगा? इनर शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल आल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन. सो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कन्वर्ट इनटू 2 and 8. बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स कन्वर्ट टू 2 8 and 8 मीन्स यहाँ पे 18 हो जाएंगे नियरेस्ट नोबल गैस, यहाँ पे 10 हो जाएंगे. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेगा. एंड ड्यू टू दिस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, प्लस माइनस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अपोजिटली अट्रैक्ट, एंड ड्यू टू दिस वी गेट द स्टेबल कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर NaCl आयनिक बॉन्ड. अब बेसिकली इतना बोल देने से Na++ Cl- आयनिक बॉन्ड नहीं बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन एंड एनर्जी ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड, और लेटाइस एंथैल्पी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. नाउ लेटाइस एंथैल्पी से पहले हाउ दिस NaCl इज फॉर्म थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कशन करते हैं. सो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड.
An ionic bond formation involves the following step. कौन कौन से स्टेप हो गए, क्या आप बता सकते हो मुझे? फर्स्ट स्टेप, सर सोडियम जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और सोडियम प्लस करना। दूसरा स्टेप होगा क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना सर, और कन्वर्ट करना Cl माइनस। तो सबसे पहले Na को कन्वर्ट करना पड़ेगा Na प्लस में, Cl को कन्वर्ट करना पड़ेगा Cl माइनस में, एंड लास्ट Na प्लस प्लस Cl माइनस दोनों को जोड़ के NaCl बनाना है। दिस आर द 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, formation of a positive ion that is cation from the electropositive element। electropositive element कौन सा है? सोडियम। The amount of energy required for the process is called ionization enthalpy। याद कीजिए चैप्टर नंबर 3, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो मेटल आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई कीजिए तो 281 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यू गेट M++ 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन सा है? क्लोरीन। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। The energy involving in this step is known as electron gain enthalpy। Minimum energy required to add one electron in an atom is known as electron gain enthalpy। X plus E minus, you get X minus plus electron gain enthalpy। And last, the packing of the cation and anion from the ionic compound, the energy changes process is called lattice enthalpy। हमें NaCl का lattice बनाना है, crystal lattice। तो कैसे बनेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों में से एनर्जी लूज करते हुए वी कैन प्रोड्यूस NaCl लेटाइस एंथैल्पी। अब कौन से जो 2 फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं या फिर इम्पैक्ट करते हैं? फर्स्ट, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मान लीजिए कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई काम का नहीं है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं कहलाएगा। वाई ग्रुप नंबर 1 ऑलवेज गिव्स यू दिस आयनिक बॉन्ड? जस्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अचीव ऑक्टेट। While opposite to that, high negative electron gain enthalpy means group number 17 is highest electron negative species, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, high lattice enthalpy of ionic compound are formed। So this is all about your ionic bond and the formation of ionic bond। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, that is all about lattice enthalpy। जो थर्ड स्टेप था वो डिस्कशन करते हैं lattice enthalpy। मीन्स there are 2 types of lattice enthalpy। दोस्तों lattice फॉर्म भी करना हो तो फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब मान लीजिए मुझे NaCl के क्रिस्टल लेटाइस को तोड़ना है, तो क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन NaCl एंड कन्वर्टेड इनटू Na++ Cl माइनस इज नोन एज लेटाइस एंथैल्पी। अब उल्टा, Na प्लस एंड Cl माइनस को जोड़ने के बाद जो बन रहा है दैट इज ऑल्सो लेटाइस एंथैल्पी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटाइस एंथैल्पी, फॉर्मेशन and deformation। deformation is bond dissociation enthalpy। so ये दोनों को हम लेटेस्ट एंथैल्पी ही बोलेंगे। एक केस के अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, किस में देनी पड़ेगी? जिसमें आपको बॉन्ड तोड़ना है। जिसके अंदर बॉन्ड जोड़ना है उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। सो it is the energy to require complete separation of 1 mole of ionic compound into corresponding gaseous ion। मीन्स 1 मोल ऑफ NaCl को ब्रेक डाउन करके 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो चाहिए दैट इज एंटाइटल्ड एज लेटाइस एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू करस्पॉन्डिंग गैसियस आयंस। और उल्टा भी हो सकता है, it is the energy liberated when 1 mole of ionic compound is formed from a gaseous ion, that is also known as lattice enthalpy।
The stability of an ionic compound is determined by this lattice enthalpy, and generally greater than lattice enthalpy, stable will be the compound. So this is all about your lattice enthalpy. So lattice enthalpy किसके लिए होती है? ionic bond के लिए. ionic bond कब बनता है? When one species release one electron, another species gain one electron. Due to this losing and gaining, one bond is formed. Force of electrostatic force is there, that is known as ionic bond. So this is all about your first type of bond, ionic bond. Next we moved on to this covalent bond. Covalent bond is sharing of electron. A bond formed by the mutual sharing of electron between two or more atom is called covalent bond. Simple example, chlorine का example ले लीजिए. क्लोरीन 287, अनदर क्लोरीन 287. अब इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इसके साथ शेयर करेगा, लाइक वाइस वर्सा एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इसके साथ शेयर करेगा, तो दोनों का ऑक्टेट हो जाएगा एंड यू गेट योर स्टेबल कंपाउंड Cl2 मॉलिक्यूल. देखिए, दिस क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, दिस क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन. जो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट हो गया. देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट हो गया जस्ट बिकॉज इस दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है. बोथ द क्लोरीन एटम हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो हियर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल. अब NaCl की तरह नहीं होगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 molecule, Cl atom share one electron pair with each other and forms a one single bond that is entitled as covalent bond. तो Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट. क्यों कोवेलेंट होगा, क्यों आयनिक नहीं होगा? बिकॉज हियर इन केस शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है. NaCl का बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट और आयनिक. आयनिक क्यों? क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. ड्यू टू दिस लूजिंग एंड गेनिंग द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. हियर इन केस शेयरिंग. दूसरा एग्जांपल डिस्कशन करते हैं, ऑक्सीजन एंड तीसरा है नाइट्रोजन. अब देखिए ऑक्सीजन के केस के अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, देखिए ये दिस ऑक्सीजन हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसके साथ शेयर कर लिया. लाइकवाइज इसके साथ शेयरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसके साथ शेयर कर लिया. सो बाय दिस यू कैन से दैट ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड. देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, और इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में आ गए. So here in case to attain octet each oxygen share 2 electron with each other and due to this double bond is formed. ऐसा एक और केस नाइट्रोजन. सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड. क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. और एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का. नाइट्रोजन 2,5, दिस नाइट्रोजन 2,5. देखिए 2 और 3 5, 2 और 3 5, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 6 और 2 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड. बट this is covalent triple bond, this is covalent double bond, this is covalent single bond. So this is a very simple concept, that is covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड का जो अभी तक डिस्कशन किया उसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन और डिस्कशन देख लेते हैं. In the formation of covalent bond, each combining atom contribute at least one electron to share a pair. Obviously, शेयर करने के लिए मिनिमम एक तो शेयर करना ही पड़ेगा. The number of electron contributed by an atom to share pair during this formation of covalent bond is called covalency. Covalency का मतलब क्या होगा? एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उतनी उसकी कोवेलेंसी. नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होगी? 3, ऑक्सीजन की 2 एंड क्लोरीन की 1. इन क्लोरीन फॉर्मेशन द कोवेलेंसी ऑफ ईच क्लोरीन एटम इज 1. ऑक्सीजन के अंदर 2 और नाइट्रोजन के अंदर 3 होगी. The double and triple bonds together are known as multiple bonds. एक शेयर किया होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 पैर शेयर किए तो डबल बॉन्ड, 3 पैर शेयर किए तो ट्रिपल बॉन्ड. A covalent bond formed by the sharing of one electron are called single bond, then double bond and triple bond. So this is all about your simple covalent bond.
And last, the limitations of octet rule, most important for your school examination concern. बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन octet rule and discuss its limitation. अब लिमिटेशंस अकेले लिखने से कोई मार्क्स नहीं देगा, आपको इसका जस्टिफिकेशन मीन्स स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे. फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? It could not explain the stability of compound containing less than 8 electron. मीन्स ये जो ड्यूप्लेट का कंसेप्ट है, कार्बन से कम मॉलिक्यूल कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. अब ये तो एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं कर रहे, तो ये कैसे स्टेबल हो गए भाई? उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए. सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेस्ट एग्जांपल NO. अब NO की बात करो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास बात करो तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. वैलेंस शेल की बात करो तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कभी भी एक दूसरे के साथ पैर नहीं कर पाएंगे, तभी भी NO स्टेबल है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. अब 8 से भी ज्यादा सेंट्रल एलिमेंट के पास हो गए, फॉस्फोरस में 10 और सल्फर के केस के अंदर 12. सो ये कैसे फिजिबल होया, ये पता नहीं चल रहा है. फोर्थ, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, बट फ्यू नोबल गैस मेक अ कंपोनेंट. बेसिकली ये तो क्या कर रहा है? इनर्टनेस दिखा रहा है. ऑक्टेट हो गया मीन्स वो इनर्ट हो गया, स्टेबल हो गया. बट देखो, क्रिप्टन मेक अ फॉर्म विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. कैसे पॉसिबल हुआ? इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस रूल. दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे खाली बॉन्ड बन रहा है, पर CH4 का शेप क्या होगा, CO2 का शेप क्या होगा, शेप के बारे में कोई जस्टिफिकेशन ऑक्टेट रूल नहीं बता रहा है. एंड लास्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी वो नहीं बता रहा है. सो अब इन सभी के एक एक जस्टिफिकेशंस के लिए एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको सभी के, वो डिस्कशन करते हैं. देखो, जो रूल नंबर 1 था, बेरिलियम एंड बोरॉन. अब देखिए, बेरिलियम के केस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है. 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल? बोरॉन की बात करो, 1 2 3 4 5 6 सेंट्रल एलिमेंट के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तभी भी BCl3 स्टेबल है. कैसे हुआ? ऑड नंबर्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो नाइट्रोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे NO स्टेबल हो गया? एंड एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 सल्फर के पास 12 है, एंड IF7 आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है. देन हाउ कम दिस मॉलिक्यूल आर सो स्टेबल मॉलिक्यूल? यहाँ पे दोस्तों मैंने क्रिप्टन का एग्जाम्पल नहीं बताया, क्रिप्टन फ्लोराइड का एग्जाम्पल भी एक है, आप टेक्स्ट बुक में से वो भी लिख लीजिएगा. तो सारे के सारे लिमिटेशंस के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने हैं. सो सबसे पहले लिमिटेशन लिखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, लिमिटेशन लिखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए. दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. इस सेशन के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड देखे. फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट सेशन हम और आगे बढ़ेंगे. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.